गुड ईवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल चाल तुहाडा। वेलकम टू UL एजुकेशन। अज 11 फैब नूं जिहड़ा एग्जाम सीगा उहदी आपां लाइव क्लास अटेंड कर रहे सी, पर थोड़ा जिहा ग्लिच आउण दे करके अपनी लाइव क्लास जिहड़ी है छेती एंड करनी पई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई अपोलोजाइज। अगे तो इदां ना होवे, इस चीज़ नूं असीं पक्का करांगे। बट कि वो जिहड़ा लैक आ उहनूं कंपनसेट करन दे लई आई हैव ब्रॉट यू अ रिकॉर्डिड वीडियो लैसन ऑफ दिस टॉपिक जिहड़ा 11 फैब दी 11 फैब ਦੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ politicians, not the individuals, as individuals can do little। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਕੁਦਰਤ, ਨੇਚਰ, ਨੈਚੁਰਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮਸ ਕਿੰਨੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪੀਪਲ ਹੂ ਹੈਵ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਰ ਕਾਲਡ पॉलिटिशियंस और पोलिटिकल लीडर्स। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਕਾਲਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਆ? ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਟ ਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਲਕਿ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਆ? ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਐਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਦੋ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਜ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕੈਨ ਡੂ ਟੂ ਲਿਟਲ। ਟੂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਦੋਸਤੋ? ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਵੈਨ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ less than expected, when something is less than required, it is called too less। okay, two word, okay, too या फिर जरूरत तो ज्यादा, जरूरत तो ज्यादा, फिर जरूरत तो घट। too little हो गया मतलब जरूरत तो घट हो गया, too much मतलब जरूरत तो ज्यादा हो गया। तो ਜਿਹੜਾ ज्यादा शब्द आ, ठीक है जी, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਵਿਦ TOO, टू। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ এনवायरमेंटल ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਫਾਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਮਚ ਇਫੈਕਟਿਵ टू hand over the responsibility of protecting the environment to people। so इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए आप ये कहने हैं कि हमेशा क्वेश्चन में जज करा करो कि ओदा अग्री दा मीनिंग क्या। बट इफ यू से इफ यू डिसएग्री, अगर आप डिसएग्री होते हैं, ठीक है जी, डिसएग्री होते हैं तो उसका क्या मीनिंग आएगा? उसका मीनिंग ये आएगा कि दोनों की इंपॉर्टेंस है। लोगों को भी, लोगों के एफर्ट्स भी चाहिए, चाहे वो लिटिल है, डजंट मैटर, बट पीपल्स एफर्ट्स आर इंपॉर्टेंट एज वेल एज the efforts or actions taken by the government or by politicians। so without wasting any time further, without bothering yourself with other details, let's move towards the sample answer। sample answer क्या कह रहा है आपका? ठीक है, sample answer क्या कह रहा है कि सिंपल सा पैराफ्रेज किया और साथ में अपना ओपिनियन दे दिया। आपने लाइव क्लास में पूछा था सर 70-30 में ओपिनियन कैसे देना है, तो आप देख लो 70-30 में ओपिनियन कैसे देना है। इट इज आर्ग्यूड, देखो ये मैंने एज अ जीरन यूज किया है, तो एज समथिंग टू स्टार्ट विद मैंने यूज कर लिया। मैंने कहा इट इज आर्ग्यूड दैट, ये आर्ग्यू किया गया, ये सजेस्ट किया गया, ये बताया गया है। सिंस कंडीशनल सेंटेंस लगा दिया। Since individuals are unable to make great efforts to conserve the environment, वो कहते since, because, यहां पर because भी आ सकता था और as भी आ सकता था। रीजन जब हम कहते हैं since मैं छोटा हूं, since I am younger, since मैं उम्र में छोटा हूं, since I am younger, comma I शुड रिसीव मोर मनी, मुझे पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर मान लो घर पे रिश्तेदार आते हैं तो ऐसी बात होती है ना कि रिश्तेदारों से ज़्यादा पैसा मिलना, तो
तब कह सकते छोटा हूं तो सबसे ज्यादा पैसे मुझे दो, बड़े को कम दो। सो सिंस कंडीशन लगा दी कि ये देखो ये बात है, इसकी वजह से ये है, बिकॉज सिंस इंडिविजुअल्स आर अनेबल, अनेबल मतलब योग्य नहीं है, एबल होता है योग्य, अनेबल मतलब योग्य नहीं, अनेबल मतलब नहीं कर सकते, पंजाबी च गल करिए भी नहीं कर सकते, दे कैन नॉट, तो उत्थे ही लिखिया सीगा दे कैन नॉट, या उन्हां दे जिहड़े एफर्ट्स ने बहुत ही लिटल ने, बहुत ही छोटे ने, इट मीनस दे आर नॉट एबल, दे आर अनेबल, अनएबल, दे आर अनएबल। जिवें पंजाबी दे विच आपां अगेतर पिछेतर करदे हुंदे तां अगेतर जदों भी किसी वर्ड दे नाल जाके जुड़ जांदे ने तां ओहदा मीनिंग नैगेटिव हो जांदा, अन इज अ प्रीफिक्स, एबल दे नाल जुड़ के इहदा मीनिंग नैगेटिव हो गया, दैट इंडिविजुअल्स आर अनेबल टू मेक अ ग्रेट एफर्ट्स, unable to make great efforts मतलब they make very little efforts, same sense, unable to make great efforts to conserve the environment, political leaders are solely responsible to tackle environmental डिग्रेडेशन। तो एनवायरमेंट को बचाने का मीनिंग क्या है कि जो एनवायरमेंट को डिग्रेड किया जा रहा है, एनवायरमेंट को दिन ब दिन तबाह किया जा रहा है, उसको टैकल करना। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या है कि जो एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है उसको कम करना, इज द सेम सेंस। जैसे मैं बात करूं कि अगर आप घर पे जाते हो और आपके माता जी आपसे पूछते हैं कि आओ बेटा खाओगे कुछ, तो आप कहते हैं भूख नहीं है, लेकिन अगर इसको ऐसे सेंस में बात करें तो अगर आपने आपके माता जी ने पूछा कि मैंने रोटी पकाई है, तो आप तब भी कह सकते हैं मुझे रोटी नहीं खानी, मुझे भूख नहीं है, मुझे रोटी नहीं खानी, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, इट इज द सेम सेंस। तो इसी वजह से मैं कहता हूं जब आप वेरिएशंस लेकर आए उसको उसका रूप बदल दिया करो, उसकी सेंस बदल दो। सेंस मतलब ये नहीं कि उसका तरीका बदल दो, सेंस उसका अर्थ वही रहना चाहिए, मीनिंग वही रहना चाहिए, लेकिन उसका तरीका बदल दो। मुझे भूख लगी है या मुझे खाना खाना है, मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना है, इट्स द मीनिंग इज द सेम बट द वे ऑफ कन्वेइंग द मैसेज इज डिफरेंट। ओके, सो The political leaders are solely responsible to tackle environmental degradation। डिग्रेडेशन का मैं मीनिंग बता चुका हूं। डिग्रेडेशन का मतलब जो एनवायरनमेंट की तबाही हो रही है उसको टैकल करने के लिए कौन, सोली मतलब ओनली, तो यही तो बात कर रहा था कि किसको जिम्मेवारी दे दो, सिर्फ किसको जिम्मेवारी दे दो, पॉलिटिकल लीडर्स को। तो 70-30 वाली थीसिस लाइन कैसे होती है, ऑल्दो मेन इन पॉलिटिक्स, तो मैंने पॉलिटिकल लीडर्स को क्या लिख दिया, मेन इन पॉलिटिक्स आर वे टू पावरफुल टू सॉल्व दिस इशू बाय टेकिंग स्ट्रॉन्ग मेजर्स। मैंने कहा ठीक है, जो लोग पॉलिटिक्स में होते हैं वो वे टू पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, इस इशू को सॉल्व करने के लिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। कैसे पावरफुल है, कैसे इशू सॉल्व कर सकते हैं, बाय टेकिंग स्ट्रॉन्ग मेजर्स, बड़े बड़े मेजर्स ले सकते हैं। आई बिलीव दैट, लेकिन फिर भी ऑल्दो से मैंने बता दिया उसको, ऑल्दो मुझे लगता है कि जो मेन इन पॉलिटिक्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो वे टू पावरफुल है, बहुत पावरफुल है इस इशू को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है, पावर है, दे कैन टेक स्ट्रॉन्ग मेजर्स, बड़े बड़े मेजर्स, इसको आप लार्ज स्केल मेजर्स भी कह सकते थे, लार्ज स्केल मेजर्स, ठीक है, बड़े बड़े कदम ले सकते हैं। लेकिन कॉमा, ऑल्दो के बाद क्या आएगा, कॉमा, ऑल्दो के बाद येट बट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कॉमे की जरूरत है। आई बिलीव दैट द रोल ऑफ द पब्लिक इज इक्वली सिग्निफिकेंट टू रिड्यूस द ह्यूमन इंपैक्ट ऑन द नेचुरल वर्ल्ड। तो मैंने कहा जो रोल है पब्लिक का, पीपल को, इंडिविजुअल्स को, पहले मैंने इंडिविजुअल्स ही लिखा था, अब मैंने इसको क्या लिख दिया, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक इज इक्वली सिग्निफिकेंट टू रिड्यूस द ह्यूमन इंपैक्ट ऑन द नेचुरल वर्ल्ड। तो मैंने कहा जो रोल है, जो भूमिका है हमारी पब्लिक की, वो इक्वली सिग्निफिकेंट है, वो इक्वली बराबर पर, हम कह सकते हैं बराबर है, वो उसकी इंपॉर्टेंस बराबर है। अगर हम क्या करना चाहते हैं, ह्यूमन इंपैक्ट जो हमारा इंपैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे, उसको कम करने के लिए जो रोल है, भूमिका है लोगों की, वो इक्वली सिग्निफिकेंट है, वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। आई होप कि इंट्रो और थीसिस क्लियर हो चुकी होगी आपको। सो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आप क्या लिख सकते थे, 30% वाला आप फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस कर सकते थे। मैं 30% अग्री हुआ हूं, 70% डिसअग्री हुआ हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिंकर की जरूरत पड़ी मुझे, मैंने कहा सबसे पहले देखो द रीजन व्हाई इट इज सजेस्टेड दैट पॉलिटिशियंस नीड टू टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो मैंने कहा कारण है एक कि क्यों ये सजेस्ट किया जा रहा है कि पॉलिटिशियंस को ये अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, लेने की जरूरत है।
ओके तो पूरी ट्रांसलेशन मैं कर रहा हूं आपके सामने। द रीजन वाई इट इज सजेस्टेड, कारण जिसकी वजह से ये सजेस्ट किया जा रहा है, इस चीज को कंसिडर किया जा रहा है कि पॉलिटिशियंस को जरूरत है ये जो अकाउंटेबिलिटी जिम्मेवारी लेने की, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी लेने की जरूरत है। उसकी रीजन क्या है? द रीजन इज दैट दे पोजेस द पावर एंड अथॉरिटी टू डू एज इट सीम्स फिट टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। अब उनके पास पावर है, अथॉरिटी है, उनको जैसा ठीक लगेगा वो वैसा करेंगे। जैसा ठीक लगेगा वो आप कैसे कह सकते थे? इज दैट दे पोजेस पावर एंड, पोजेस मतलब होल्ड, उनके पास है, उनके पास है। दे पोजेस, दे ओन, दे हैव, ओके हैव, दे हैव पावर एंड अथॉरिटी टू डू एज इट सीम्स फिट, टू डू एज इट सीम्स फिट, जैसा उन्हें ठीक लगेगा वो वैसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है? दे पोजेस पावर एंड अथॉरिटी टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट, जो कार्बन फुटप्रिंट है। अब देखो ह्यूमन का जो प्रभाव है हमारे वातावरण पर, उसको आप कार्बन फुटप्रिंट भी कहते हो। तो इसको रिड्यूस करने के लिए जैसा उन्हें ठीक लगेगा वो वैसा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पावर और अथॉरिटी है। इसीलिए ये सजेस्ट किया जा रहा है कि जो जिम्मेवारी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, वो किसके पास होनी चाहिए? वो उनके पास होनी चाहिए जो बंदे पॉलिटिक्स में हैं, जो बंदे पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो मैंने अपना फर्स्ट पॉइंट दे दिया, अब मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। अ गवर्नमेंट कैन इजीली हॉल्ट द प्रैक्टिसेस दैट अफेक्ट द एनवायरनमेंट बाय इंपोजिंग प्रोहिबिशंस एंड पेनल्टीज ऑन एक्टिविटीज सच एज लॉगिंग। तो मैंने कहा एक सरकार बहुत इजीली, आसानी से ऐसी प्रैक्टिसेस को हॉल्ट कर सकती हैं, रोक सकती हैं जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं, प्रभाव डालती हैं एनवायरनमेंट पे। कैसे? बाय इंपोजिंग, इंपोजिंग होता है थोपना, लागू करना। सरकार पूछती नहीं है, सरकार लागू कर देती है। बाय इंपोजिंग प्रोहिबिशंस, प्रोहिबिशंस होते हैं बैन, ठीक है। प्रोहिबिशन क्या होती है? कानूनी पाबंदियां। बैन्स एंड पेनल्टीज, पेनल्टीज क्या होती हैं? फाइन, जो आपको देना पड़ता है सरकार को। तो मैंने कहा कि एक सरकार ऐसी गतिविधियों को आसानी से रोक सकती हैं जो एनवायरनमेंट को, जो वातावरण को बुरा प्रभाव पहुंचाती हैं, अफेक्ट द एनवायरनमेंट। कैसे? बाय इंपोजिंग प्रोहिबिशंस एंड पेनल्टीज, बैन लगाकर, फाइन लगाकर ऐसी एक्टिविटीज। कैसे? मैंने फिर आगे एग्जांपल दी, सच एज इलीगल लॉगिंग। लॉगिंग होती है पेड़ काटना बहुत बड़ी मात्रा में, इलीगल लॉगिंग होती है, लीगल भी होती है, इलीगल भी होती है। तो ऐसी एक्टिविटीज, और कैसी एक्टिविटीज? डंपिंग वेस्ट, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, डंपिंग वेस्ट इन रिवर्स एंड सो ऑन। तो ऐसी गतिविधियां जो वातावरण को हानि पहुंचाती हैं, वो उनको रोका जा सकता है। गवर्नमेंट कैन इजीली हॉल्ट, आसानी से गवर्नमेंट उनको रोक सकती है। कैसे? बाय इंपोजिंग प्रोहिबिशंस एंड पेनल्टीज। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, several Indian cities are cleaner than before with help of a government initiative known as भारत स्वच्छ अभियान। तो मैंने कहा बहुत सी ऐसी हिंदुस्तान के शहर हैं जो अब पहले से साफ हैं, आर क्लीनर देन बिफोर विद हेल्प ऑफ अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव नोन एज भारत स्वच्छ अभियान। तो जैसे ये मैंने एग्जांपल डाल दी अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए कि एक सरकार कैसे अपना रोल प्ले कर सकती है। ठीक है जी, क्लियर एवरीबॉडी? तो इसको और भी एक्सटेंड किया जा सकता था। अब इसमें किसी बैन की, किसी पेनल्टी की बात कर सकते थे। कोई ऐसा एक्ट, जैसे द गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में शायद, तो आप उसकी एग्जांपल भी दे सकते हो। ये आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप कैसी एग्जांपल देना चाहते हो। देयरफॉर द फार ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिशियंस व्हाइल टेकिंग एक्शंस टू डिक्रीज द ह्यूमन इफेक्ट ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट कुड बी द रीजन। तो फार ग्रेटर इन्फ्लुएंस, उनके पास बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस है। उनके पास इन्फ्लुएंस यहाँ पे प्रभाव नहीं है, इनका इन्फ्लुएंस का मीनिंग यहाँ पे पावर है। तो ये जो फार ग्रेटर इन्फ्लुएंस है पॉलिटिशियंस की, कब? जब, वाइल, व्हेन। तो वाइल यहाँ पे कंपैरिजन के लिए नहीं है, वाइल व्हेन का एक सिग्निफिकेशन है यहाँ पे। व्हेन टेकिंग एक्शंस टू डिक्रीज द ह्यूमन इफेक्ट ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट could be the reason to hand over this obligation to the political figures rather than individuals। तो मैंने कहा ये एक रीजन हो सकता है कि जे उनकी जो फार ग्रेटर इन्फ्लुएंस है
जब वो एक्शन लेंगे ह्यूमन इफेक्ट, जो मैंने बताया था कि इंसान का जो प्रभाव है एनवायरनमेंट पे उसको कम करने के लिए जो उनके पास जो फार ग्रेटर इन्फ्लुएंस है, कुड बी द रीजन, ये एक कारण हो सकता है टू हैंड ओवर दिस ऑब्लिगेशन टू द पब्लिक फिगर्स। ये जिम्मेदारी सौंपनी, हैंड ओवर करना किसी चीज को, उस चीज को आगे पास करना। ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, किसको? पॉलिटिकल फिगर्स को, किसकी बजाय? इंडिविजुअल्स की बजाय। ये था मेरा पहला बॉडी पैराग्राफ जिसमें मैंने एक साइड को 30% डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द सेकंड बॉडी पैराग्राफ। आई होप आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर एंड इट इज गेटिंग इजियर, कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, ठीक है। हाउएवर, लेकिन मैंने अब मुझे लिंकर की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि अब मैं दूसरी साइड डिस्कस करने वाला हूं। पहले मैंने थोड़ा सा अग्रीमेंट का डिस्कस करा, अब मुझे वैसा लिंकर चाहिए जो मेरे डिसएग्रीमेंट को सिग्निफाई कर सके, बता सके कि अब राइटर जो है डिसएग्रीमेंट की बात करेगा। हाउएवर द कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान ऑफ द पब्लिक इज आल्सो इक्वली रिक्वायर्ड टू अचीव द गोल ऑफ प्रिजर्विंग नेचुरल एनवायरनमेंट्स। तो मैंने कहा कि जो पब्लिक का योगदान है वो इक्वली रिक्वायर्ड है, किसके लिए? ये जो गोल है हमारा प्रिजर्व करना, सेव करना नेचुरल एनवायरनमेंट को, इसको अचीव करने के लिए हमें पब्लिक के साथ की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इक्वली रिक्वायर्ड है। विदाउट द कॉपरेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के सामर्थ्य के बिना, सोसाइटी दी सहायता दे बिना, इट सीम्स अनरियलिस्टिक टू एक्चुअलाइज द मोटिव्स ऑफ पॉलिटिकल एक्शंस टू लेसन द इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट। सोसाइटी के साथ तो बिना ये चीज अनरियलिस्टिक लगती है। इट सीम अनरियलिस्टिक मतलब इम्पॉसिबल, ओके। जो चीज हो ना सके उसको आप इम्पॉसिबल या फिर अनरियलिस्टिक कह सकते हो। इट सीम्स अनरियलिस्टिक टू एक्चुअलाइज, एक्चुअलाइज वो चीज होती है जब आप किसी चीज को रियलिटी में बदलते हो। वर्ड अच्छा है, वर्ब अच्छा है, इट इज अ वर्ब। एक्चुअलाइज मतलब होता है मेक द रियलिटी ऑफ। तो अगर हम ये चाहते हैं, अगर हमारे पास पब्लिक का साथ नहीं है तो ये हमारे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा कि ये जो हमारे मोटिव्स हैं ऑफ पॉलिटिकल एक्शंस के, किसके कहाँ डायरेक्ट किया जा रहे हैं, जो मोटिव्स हैं टू लेसन द इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट, ये क्या होगा? इट सीम्स रियलिस्टिक, ये नामुमकिन लगता है कि जो पॉलिटिकल एक्शंस लिए जा रहे हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये एक्चुअलाइज कभी हो भी पाएंगे, ये कभी रियलिटी बन भी पाएंगे, ठीक है। सो इट बिकम्स द ऑब्लिगेशन ऑफ पीपल टू एक्सर्ट पोटेंशियल एफर्ट्स। एक्सर्ट मतलब करना, कोशिश करना, एक्सर्ट, ओके। EXERT बहुत ही अच्छा वर्ब है, मुझे वर्ब्स बहुत ज्यादा पसंद हैं। It becomes the obligation of people to exert potential efforts to play their part in conserving natural resources। तो मैंने कहा ये एक जिम्मेवारी बनती है लोगों की कि वो पोटेंशियल एफर्ट्स, पोटेंशियल मतलब पॉसिबल एफर्ट्स एक्सर्ट करें, पॉसिबल कोशिश करें कि वो उनका जो पार्ट है कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने में वो अपना पार्ट प्ले कर सकें, ठीक है। तो आगे मैंने क्या लिखा, आगे जो बात लिखी है वो सुनकर तो आप दंग ही हो जाओगे। मैंने आगे ये लिखा है, मैंने कहा ठीक है कि ये लिटिल इनिशिएटिव्स तो हैं, मैंने इस बात को तो अग्री कर लिया। मैंने कहा लिटिल इनिशिएटिव्स, मैंने कहा लिटिल इनिशिएटिव्स सच एज रीयूजिंग और रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स, planting trees, abandoning use of plastic and using private cars less often are likely to have a major impact in saving the environment। तो मैंने कहा ये जो छोटी छोटी कोशिशें हैं, लिटिल इनिशिएटिव्स हैं, जैसे प्रोडक्ट्स को रीयूज करना या रिसाइकल करना, ट्रीज प्लांट करने, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने, दरख्त उगाने, ठीक है। अबैंडनिंग मतलब त्यागना, अबैंडनिंग मतलब त्यागना, त्यागना की त्यागना जी आपा हमें क्या त्याग करना है, किस चीज का त्याग करना है, ठीक है। ये एक वर्ब है, ये भी अबैंडनिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के यूज को त्याग कर देना, उसको प्लास्टिक से बिल्कुल ही परे हो जाना। एंड यूजिंग प्राइवेट कार्स लेस ऑफन, प्राइवेट कार्स को कम यूज करना, ऑफन मतलब अक्सर, लेस ऑफन मतलब कम, ठीक है। तो उनको लेस ऑफन यूज करना आर लाइकली टू हैव अ मेजर इंपैक्ट इन सेविंग द एनवायरनमेंट। देखो एफर्ट्स लिटिल है, इंपैक्ट मेजर है, बस यही बात मैं करना चाहता था। दिस इज, अगर ये कला आपने सीख ली तो आप IELTS में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो आर लाइकली टू हैव मेजर इंपैक्ट ऑन मेजर क्या था हमारा, मेजर इंपैक्ट इन सेविंग द एग्जिस्टिंग नेचुरल बायोसिस्टम्स। तो मैंने नेचर को अब अपनी वोकैबुलरी दे दी, मुझे बायोसिस्टम्स वर्ड याद आ गया।
तो मैंने कहा इनको बचाने में, इनको सेव करने में मेजर इंपैक्ट होगा उन लिटिल इनिशिएटिव्स का। हेंस अब मुझे रिजल्ट निकालने की जरूरत अपने आइडियाज की। हेंस आई वुड आर्ग्यू दैट इवन द इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स, लोगों के जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स हैं, माइट सीम अक्यूट, अक्यूट मतलब छोटे। मैंने कहा कि ये जो लोगों के एफर्ट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है छोटे लग सकते हैं, दे माइट सीम अक्यूट, पर येट दीज आर, देखो कंपाउंड सेंटेंस बन गया येट लगाकर, येट दीज आर इनॉर्मसली एसेंशियल टू मेक द पॉलिटिकल मेजर्स रियलाइज द एंड गोल ऑफ प्रिजर्विंग इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द प्लेनेट। लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इनॉर्मसली एसेंशियल, एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, इनॉर्मसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? टू मेक द पोटेंशियल मेजर्स रियलाइज, ये जो पॉलिटिकल कोशिशें हो रही हैं, रियलाइज मतलब उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना, रियलाइज मतलब अचीव, रियलाइज मतलब अचीव। तो ये जो एंड गोल है इकोलॉजिकल सिस्टम को प्रिजर्व करने का, तो प्रिजर्व करने का ये जो पॉलिटिकल मेजर्स हैं, इनका एंड गोल क्या है कि ये इकोलॉजिकल सिस्टम प्रिजर्व हो। तो ये कैसे रियलाइज होगा, ये कैसे पॉसिबल होगा? विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स, चाहे वो कितने ही अक्यूट क्यों ना हो, कितने ही छोटे क्यों ना हो। क्लियर एवरीबॉडी? सो इसका जो सैंपल है उसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में अपलोड कर दी है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग सेशन अभी अपलोड हो जाएगा, सो इसको जल्दी से देख लो। 11th फेब के एग्जाम का ये सैंपल है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रिपेयर करते हैं, कल 10 तारीख थी, येस्टरडे इट वाज 10th of Feb, और कल हमने अग्री डिसएग्री टास्क डिस्कस करा था, तो कल अग्री डिसएग्री टास्क किया, आज प्रेडिक्शन में जैसे बताया था, आज के एग्जाम में 11th Feb के एग्जाम में अग्री डिसएग्री टास्क ही आया। इन कंक्लूजन, I strongly oppose the viewpoint of shifting the liability to safeguard the environment। तो मैंने कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं, स्ट्रांगली मतलब काफी ज्यादा, ठीक है। स्ट्रांगली जो है वो मेरा 70% डिसएग्री शो करेगा। स्ट्रांगली अपोज द व्यू पॉइंट ऑफ शिफ्टिंग, शिफ्टिंग मतलब शिफ्ट करना किसी चीज को आगे देना। क्या देना? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे सिर दर्द हम कह देते हैं, कुछ ऐसी चीज। लाइबिलिटी टू सेफगार्ड, सेफगार्ड मतलब बचाना, सेफगार्ड द एनवायरनमेंट ऑन टू द पॉलिटिकल लीडर्स। मैंने कहा मैं इसको पूरी तरह से स्ट्रांगली अपोज करता हूं, पूरी तरह से इसका विरोध करता हूं। एज इट डिमांड्स जॉइंट एफर्ट्स ऑफ नॉट ओनली द regime बट द पीपल इन ऑर्डर टू रियलाइज द एम ऑफ एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन। तो मैंने कहा कि एज, बिकॉज, क्यों ये डिमांड करता है, कौन डिमांड करता है? इट कौन डिमांड करता है? लाइबिलिटी डिमांड करती है कि जॉइंट एफर्ट्स हो, सिर्फ सरकार के नहीं, लोगों के भी। किसके लिए? इन ऑर्डर टू रियलाइज द, रियलाइज मतलब मैंने आपको बताया था अचीव, अचीव की जगह पे रियलाइज भी लिखा जा सकता है, जैसे हमने एक्चुअलाइज वर्ड किया था। एक्चुअलाइज वर्ड हमने अभी यूज करा, मतलब रियलिटी में कन्वर्ट करना उस चीज को। तो अगर हम इस एम को अचीव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जॉइंट एफर्ट्स चाहिए, क्योंकि यही इस लायबिलिटी की डिमांड है। आस करता हूं ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ बताना उनको कि कैसी क्वालिटी इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं, ठीक है। मैं क्षमा मांगता हूं कि थोड़े बहुत ग्लिचेस आने की वजह से हमारी लाइव क्लास इंटरप्ट हो चुकी है, पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ UL एजुकेशन। थैंक यू सो मच।